إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أتيق الله من النار۔ ہر قسم کی بڑائی کبریائی و حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور اسی کی مناسبت سے ایک حدیث رسول کا ٹکڑا ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک سچے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد، پیغمبروں کے بعد، اس کائنات میں سب سے محترم جو شخصیت ہے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے نہایت مستحکم اور مضبوط عقیدے کے حامل تھے، اور اخلاق و کردار کی بلندی کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اس حوالے سے اللہ کے کلام میں بھی گواہیاں ہیں، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بے شمار ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بچپن کے ساتھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بچپن کے دوست تھے، اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت انہی کو حاصل ہوئی ہے۔ پچھلے 2 خطبات جمعہ میں آپ نے صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ باتیں سنی، مناسب سمجھا گیا کہ صحابہ کرام میں انبیاء اور رسول کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، آج کے خطبہ جمعہ میں ان کا ذکر جمیل ہونا چاہیے اور ان کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ کوشش کروں گا بہت بڑی ان کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ اور ان کی زندگی کے بہت بڑے سنہرے کارنامے ہیں، وہ مختصر سے وقت میں پیش کرنا یہ ناکافی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کچھ باتیں ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں
رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ شاعر کے الفاظ میں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ ہمارا اور آپ کا ہی نہیں بلکہ سارے ہی مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے، سبحان اللہ، کہ انبیاء کرام کو چھوڑ کر کے، پیغمبروں کو چھوڑ کر کے، نبیوں کو چھوڑ کر کے اس پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت و شرف اور جو بزرگی صدیق اکبر کو ملی ہے، سبحان اللہ، آج تک ہی نہیں، قیامت کی صبح تک کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کیا کہا جائے صدیق اکبر کے حوالے سے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دوست تو تھے، یہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی تھے۔ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، پوری زندگی بھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور خدمت اور فرما برداری کرتے رہے۔ ہمیشہ پوری زندگی انہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند رکھا، سبحان اللہ، اور ہمیشہ غلبہ اسلام کی کوشش میں لگے رہے۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، سننے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے، اسلاف کے، سلف صالحین کے واقعات، ان کی سیرتوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ میری آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اس سے بڑی کمزوری ہے کہ اگر کوئی سناتا ہے تو ہم سنتے نہیں ہیں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے سیرت کے سچے واقعات، خلفائے راشدین کے کارنامے بیان کیے جائیں گے، علماء کرام آ رہے ہیں، تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری اس سے بڑی کمزوری ہے۔ ہماری آپ کی دنیا میں مغلوب ہونے کے کئی اسباب ہیں، ہارنے کے، پچھڑنے کے کئی اسباب ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہم نے تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ سلف صالحین کی زندگیوں سے عبرت اور نصیحت اور دروس اور اسباق لینا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے آپ کے جمعہ میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سلف صالحین کی زندگیوں کے کچھ واقعات وقتاً فوقتاً آنے چاہیے، تاکہ میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے، سب کے لیے اس میں سبق موجود ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے، یہ جمعہ کا موقع ہے، ابو بکر نام سنتے ہیں، یہ تو ان کی کنیت تھی، ان کا نام کیا ہے؟ اللہ کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ آج کی نئی نسل کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے۔ وہ ان کی کنیت تھی جناب، نام ان کا عبداللہ تھا، عبداللہ ان کا نام تھا، اور کنیت تھی ابو بکر، اور کنیت کے نام سے زیادہ مشہور ہوتے ہیں یہ۔ ان کے والد کا نام تھا عامر ابن عثمان، اور ان کے والد ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ وہ زندگی ہے جس کو پڑھ کر کے زندگیاں بنتی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ وہ حیات طیبہ ہے جن کو پڑھ کر کے، سن کر کے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جانتے ہیں صدیق اکبر کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ، ان کی 4 پشتوں کو صحابی رسول بننے کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ ہجرت کے بعد یہ اسلام قبول کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے والد ہو گئے۔ نمبر 2 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد اور عبد الرحمن، یہ بھی صحابی ہیں۔ اور ان کے بعد محمد کے بیٹے عبد الرحمن، وہ بھی صحابی ہیں۔ یعنی دادا، باپ، بیٹا اور پوتا، اللہ کی قسم یہ سب صحابی ہیں۔ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھو، شاید کسی کو یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ ملا ہو کہ دادا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور
पोता भी सहाबी। और जहाँ तक इनकी बच्चियों की बात है, इनकी बेटियाँ सारी की सारी सुभान अल्लाह जो उनको प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा मिली, सब ईमान लाई, वो भी सहाबिया। सिद्दीक अकबर की माँ उम्मुल खैर, वो भी सहाबिया। सुभान अल्लाह, क्या कहा जाए इनके बारे में। आइए चलिए कुछ इनके हवाले से सुनते हैं। मैंने कहा इनको जो पूरी कायनात में अंबिया और रसूल के बाद जो मकाम मिला, अल्लाह की कसम है क़यामत तक कोई इनके मकाम को पहुंच नहीं सकता है इंशाअल्लाह। बोलो, ये मकाम अल्लाह ने दिया है। एक इनका लक़ब है अतीक। क्या है? अतीक। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अंत अतीकुल्लाहि मिनन नार। ऐ सिद्दीक अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जहन्नम से, आग से, नारे जहन्नम से, आतिशे जहन्नम से अल्लाह ने आपको आज़ाद कर दिया है। बड़े मालदार थे अबू बकर, सुनिए, बड़े सखी थे अबू बकर, सुनिए। जानते हैं इन्होंने अपनी माल का कैसा इस्तेमाल किया? मक्के में जो गरीब मुसलमान थे, सताए जाते थे, अल्लाह की कसम मारे जाते थे, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना माल उनके ऊपर खर्च करके उनको अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया करते थे। हजरत बिलाल हबशी कौन है? ये इस्लाम लाए, ईमान लाए, ईमान लाने के जुर्म में मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, गरम रेत पर लिटाया जा रहा है। हजरत अबू बकर को बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, अपना माल खर्च किया, 200 दिरहम चांदी खर्च करके हजरत बिलाल को अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया। एक सहाबिया है जिनका नाम है जुन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अबू जहल ने इनको बहुत मारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर हुई, जाकर के जुन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खरीद करके अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया। इनके गुलाम थे आमिर इब्ने फहीरा, सुभान अल्लाह, वो भी किसी के गुलामी में जिंदगी जी रहे थे। अबू बकर को खबर मिली ईमान ले आए, बड़े खुश हुए, अपना माल लगाया, उनको भी अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया। इसी तरीके से मेरे भाइयों एक नहदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाम आता है। इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की राह में मारी जा रही हैं और ईज़ाएं दी जा रही हैं। अबू बकर ने अपना माल लगाया और अल्लाह की राह में इनको आज़ाद कर दिया। माली कुर्बानी अगर देना है, माली मजलूम मुसलमानों की मदद करनी है, माली कुर्बानी के जरिए से हयात सिद्दीकी पर हो, अल्लाह की कसम है। दुआ करे अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हवाले से कई आयात नाजिल फरमाई। एक जगह अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह ने कहा रहा वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में दिया, परहेजगारी अख्तियार की और उसने सच्ची बातों की तस्दीक की, अल्लाह ने कहा उसकी जिंदगी हम आसान कर देंगे। अल्लामा इब्ने कसीर वगैरह सारे मुफस्सिरीन लिखते हैं ये आयत करीमा नाजिल हुई अबू बकर सिद्दीक के बारे में। मेरे भाइयों एक लक़ब इनका सिद्दीक है, वो तो मारूफ और मशहूर है। जब मेराज से वापस आए मेरे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई लोगों ने इनकार कर दिया, मेराज का इनकार कर दिया। सबसे पहले मेराज के वाक़े की तायीद और तस्दीक करने वाले कोई थे, सिद्दीक थे। सुभान अल्लाह, सच्चाई के पैकर, हर वक्त हेमा वक्त प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को आपने बिला चू चरा तस्लीम किया, तायीद की, इसलिए आपका एक लक़ब था सिद्दीक। उम्मत का इजमा है इस कायनात में सिद्दीक जब कभी भी बोला जाएगा अबू बकर के लिए बोला जाएगा। सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं दौरे जाहिलियत की बात मैं कुछ करूं इनके हवाले से। दौरे जाहिलियत में जानते हैं आप, ज़माने जाहिलियत बिगड़ा हुआ माशरा, एक जाहिली माशरा था इसलिए उसको ज़माने जाहिलियत कहा जाता है। बिगड़ा हुआ माशरा था वो। सुभान अल्लाह। उस बिगड़े हुए माशरे में कई लोग थे जो बड़े अच्छे थे, उनमें एक नाम आता अबू बकर सिद्दीक का। इन्होंने ज़माने जाहिलियत में भी सुभान अल्लाह शराब को हाथ नहीं लगाया। पूछने वाले ने पूछा कि जब पूरा माशरा ये शराब पी रहा है, आपने शराब को हाथ नहीं लगाया? बोले मैं नहीं चाहता हूं शराब पी करके मैं अपनी इज्जत को नीलाम करूं। शराबी आदमी शराब पी करके अपनी इज्जत को नीलाम करता है। कहा मैं नहीं चाहता हूं कि मैं शराब पी करके अपनी इज्जत को मैं नीलाम करूं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, आपने कहा सदाका सिद्दीक, अबू बकर ने सच कहा। वाकई में शराबी की हालत यही होती है मेरे भाइयों। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं
बहुत बड़े ये ताजिर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत से नवाजा था। तिजारत की खातिर इन्होंने कई मुल्कों का सफ़र किया। खुद प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के साथ मुल्क शाम का दौरा किया, कई और इलाकों का सफ़र किया इन्होंने। जब आप अलैहिस्सलाम 40 साल के हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबी और रसूल बनाया, पैगम्बर बनाया। गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई। आप अलैहिस्सलाम माई खदीजा के पास आए, सारी बातें मौजूद हैं। उसके बाद जब माई खदीजा ने आपको नबी और रसूल तस्लीम कर लिया, अब आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे मर्दों में मैं सबसे पहले किसके पास जाऊं? आपके दोस्त, आपके सच्चे साथी, बचपन के दोस्त अबू बकर का ख्याल आया। कहा चलो सबसे पहले चलते हैं, अबू बकर के पास चलते हैं और उनको इस्लाम की दावत देते हैं, उनको ये खबर करते हैं कि अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी और रसूल बनाया है। आप अलैहिस्सलाम आए, सिद्दीक अकबर के पास आए, आकर के कहा सिद्दीक, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर वही नाजिल की है, फरिश्ता के जरिए से अल्लाह ने पैगाम दिया है कि मैं आखिरी नबी और रसूल हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं। अल्लाह का यह भी पैगाम है इबादत और बंदगी अल्लाह की करो और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करो, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, कुर्बान जाए। सिद्दीक अकबर ने सुना, फौरन मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। माई आयशा फरमा है प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने इस्लाम को कई लोगों के ऊपर पेश किया कि मैं आखिरी नबी रसूल हूं। सब लोगों ने कहा सोचेंगे, गौर करेंगे, बाद में फैसला लेंगे। कायनात में मक्के में वाहिद शख्सियत थी अबू बकर की। आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम पेश किया बिला किसी लैतुलाल के, बिना किसी तरद्दुद के, बिना किसी ताखीर के। सिद्दीक अकबर ने इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी ने फरमाया मक्के की दोनों घाटियों के दरमियान में मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर हुई कि मैंने अबू बकर के सामने इस्लाम पेश किया और उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। दुआ करें अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। ये गिरा कद्र खजाना थे, माया नाज खजाना थे। सिद्दीक अकबर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के लिए महफूज रखा था। ये आए नहीं थे, सिद्दीक को लाया गया था किसके लिए? इस्लाम के लिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैं आपको बताऊं यही वजह है जब सिद्दीक अकबर ने इस्लाम कबूल किया, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए, इस्लाम इन्होंने कबूल किया, खामोश नहीं बैठे, इस्लाम का परचम लेकर के उठ खड़े हो गए। अब वो जानते थे इस्लाम नाम है अमल का, इस्लाम नाम है दावत का, इस्लाम नाम है पैगाम का, इस्लाम नाम है तहरीक का, एक खामोश दावत का। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था खुफिया तरीके से दावत का काम शुरू करे। सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गए। जानते हैं अल्लाह ने इनकी दावत में बड़ी बरकत रखी थी और बहुत इखलास इनकी दावत में थी। यही वजह है जब सिद्दीक अकबर जहां जाते इस्लाम को फायदा होता, मुसलमानों को होता। सिद्दीक अकबर की दावत से एक एक बात गौर से सुनना, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर की दावत से जुबैर इब्ने अव्वाम मुसलमान हुए, सिद्दीक अकबर की दावत से उस्मान गनी मुसलमान हुए, सिद्दीक अकबर की दावत से तलहा बिन उबैदुल्लाह मुसलमान हुए, सिद्दीक अकबर की दावत और तबलीग और उनकी कोशिश से साद इब्ने अबी वक्कास मुसलमान हुए, सिद्दीक अकबर की दावत से अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मुसलमान हुए। और जानते हैं ये वो हस्तियां हैं जो अशरे मुबशरा हैं। अशरे मुबशरा है वो 10 सहाबा जिनको दुनिया में प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी है। 10 में से 6 लोग इस्लाम लाए हैं अबू बकर की कोशिश से, अल्हम्दुलिल्लाह। 6 लोग, 10 सहाबा जो जन्नती हैं, उन 10 में 6 सहाबा किसकी कोशिश है? हजरत अबू बकर की कोशिश से इस्लाम लाए, मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह, क्या कहा जाए इनके बारे में। और ये जानते ही आशरे मुबशरा जो थे ये ना अस्साबिकून अल-अव्वलून थे, ये इस्लाम के दाई थे, ये इस्लाम के मुबल्लिग थे। यही वजह है आप अलैहिस्सलाम ने 10 सहाबा को दुनिया में जन्नत की बशारत एक मजलिस में सुनाई है, सुभान अल्लाह। उनमें 6 लोग अबू बकर की दावत से मुतासिर होकर के मुसलमान हुए। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जहां तक ईमान की बात आई है, वक्त जल्दी खत्म हो रहा है, 2-4 बातें और कहेंगे इंशाअल्लाह, बहुत बड़ा मौजू है।
है, सुनिए, जहां तक ईमान की बात है ना, सारे सहाबा का ईमान बहुत ही पक्का सच्चा था, सारे अपने ईमान में बहुत ही खरे उतरे, सुभान अल्लाह। लेकिन सिद्दीक अकबर के ईमान की जो क्वालिटी, उनके ईमान की जो हरारत कह लें आप, या उनके ईमान की जो तेजी कह लें, या उनके ईमान का जोश कह ले, सुभान अल्लाह, उसके मुकाबले में कोई नहीं आ सकता है। यही वजह है, आप जानते हैं गवाही कौन दे रहा है, जानते, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, कहा अगर नबी को छोड़ करके, पैगंबर को छोड़ करके, रसूल को छोड़ करके अगर सारे लोगों के ईमान को तराजू के एक हिस्से में रखा जाए और अबू बकर के ईमान को तराजू के एक हिस्से में रखा जाए, अबू बकर का ईमान भारी हो जाएगा, सुभान अल्लाह। सिद्दीकियत ऐसे मिली है, आपने क्या समझा है, ये मकाम ऐसे मिला है, उनका ईमान ऐसा था, और अल्लाह की कसम है सैकड़ों मिसाल हमारे उलमा देंगे और दिए हैं उलमा ने, उनका ईमान कैसा था, अल्लाह अकबर। यही वजह है सारे कायनात के लोगों के ईमान को तराजू के एक हिस्से में रखा जाए और सिद्दीक अकबर के ईमान को एक हिस्से में रखा जाए, उनका जो पलड़ा है ना भारी हो जाएगा, सुभान अल्लाह। जानते हैं आप, पूरी उम्मत के लोग हजरत अबू बकर के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और जब ईमान की बात आई है तो अमल भी आना चाहिए, ईमान है तो अमल भी होना चाहिए। यही वजह सिद्दीक अकबर को देंगे, ईमान भी है और अमल भी है। कौन सी ऐसी नेकियां हैं जो आपको सिद्दीक अकबर की जिंदगी में नहीं मिलेगी, हर नेकी में पेश रहने वाले। उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, हम जिस नेकी के बारे में सोचते थे, सुभान अल्लाह, लपकते थे, हमें पता ये चलता था अबू बकर ने ये नेकी पहले कर डाली है, सुभान अल्लाह। हम जिस नेकी की तरफ बढ़े, हमें ये खबर मिली अबू बकर ने ये नेकी पहले कर डाली है। मशहूर बात है, आपके हवाले मैं करना चाहता हूँ। मजलिस लगी हुई है, सहाबे कराम मौजूद हैं। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी ने पूछा, मन अस्बहा मिनकुमुल यौम साइमा, आज तुम में से कौन सा आदमी रोजा रखा हुआ है? सारे सहाबा मौजूद हैं। ये आप ईमान भी देखें और अमल भी देखें। हमारा आपका मामला ये है, दावा ईमान का करते हैं, हमारी आपकी अमली जिंदगी खाली है। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ करें अल्लाह ताला कहने वाले को भी, सुनने वालों को भी अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ईमान ये पैगाम देता है, अमल, ईमान ये कोशिश है अमल के लिए, सुभान अल्लाह। ईमान है और अमल ना हो, ये कैसे हो सकता है? अबू बकर ईमान वाले है और अमल ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, आज तुम में से किस आदमी ने रोजा रखा है? सहाबा खामोश। हाथ उठा किसका? अबू बकर का हाथ उठा, मैं रोजे से हूं। अगला सवाल आपने, मन तबिया मिनकुम अल-यौमा, फरमा जनाज़तन, तुम में से कौन सा आदमी ऐसा है जो आज जनाजे में शरीक हुआ है? सहाबा खामोश। हाथ किसका उठा? जज़ाकल्लाह खैर। किसका? अबू बकर का हाथ उठा। उसके बाद आप सलाम ने पूछा, आज तुम में से किसने मिस्कीनों को खाना खिलाया? किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? खामोश। हाथ किसका उठा? अबू बकर का। आपने चौथा सवाल किया, आज तुम में से किसने मरीज की इयादत की है? सारे खामोश। हाथ उठता है सिद्दीक अकबर का। कुर्बान जाए, सुभान अल्लाह। ये चारों सवाल के जवाब में जो हाथ उठने वाला है वो सिर्फ सिद्दीक का है। अल्लाह अकबर। ये हयात सिद्दीकी है, ये हयात अबू बकर है। मुसलमानों, जिंदगियां बदलनी चाहिए उनकी जिंदगी पढ़ करके। हमें और आपके अंदर इनकलाब आना चाहिए उनकी हालात को पढ़ करके। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया जिसके अंदर ये खूबियां जमा हो जाएंगी, मजतमाअना फीहिन्ना, कहा जिसके अंदर ये खूबियां जमा हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को जन्नत में दाखिल करेगा। सिद्दीक अगर जन्नती नहीं है, याद रखो दुनिया में कौन जन्नती हो सकता है नबियों के बाद? सिद्दीक अकबर अगर सबसे बड़े नहीं है, सुभान अल्लाह, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी नहीं है तो और कौन सहाबी बन सकता है? अफसोस होता है मेरे भाइयों। सुनिए, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। और यही वजह है, नेकियों के हर फील्ड में, नेकियों के हर मैदान में नाम आएगा अबू बकर का, हर फील्ड में नाम आएगा। हम और आपकी पहचान होती, कोई अमीर आदमी है तो सदका दे देते हैं, कोई आदमी तहज्जुद में आगे रहते हैं, कोई आदमी तिलावत कुरान में आगे रहते हैं। हयात सिद्दीकी का सबक लो, ये वो जिंदगी है जो हर नेकी में आगे है, सुभान अल्लाह।
दुआ करे अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमें भी उनके जैसा बनने की, उनके नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। जानते हैं जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा कि कल क़यामत का रोज़ होगा, जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। कितने? 8 दरवाजे होंगे जन्नत के। सुभान अल्लाह। एक आखिरी पैगाम है, ये बहुत बड़ी बातें अभी इनके हवाले से मौजूद हैं इंशाअल्लाह। कहा कि कल जब हश्र का मैदान होगा, क़यामत का दिन आखिरी, जिसको यौम महशर कहा गया है, बपा होगी। सुभान अल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। बाबुल सदका है, बाबुल रैयान है, बाबुल जिहाद है, बाबुल सलाह है, वगैरह वगैरह सब उसके नाम बताए गए हैं। आपने फरमाया जो दुनिया में सदका करता था बाबुल सदका से दाखिल होगा, जो दुनिया में नमाजें ज्यादा पढ़ता था बाबुल सलाह से दाखिल होगा, जिसने दुनिया में जिहाद करके अपनी गर्दन, इस्लामी जिहाद जिसने किया, गर्दन जिसने कटाई, जामे शहादत नौश किया, वो बाबुल जिहाद से दाखिल होगा। सहाबा सुन रहे हैं, सुन रहे, खामोश बैठे हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक सवाल सूझी, बोले या रसूल अल्लाह, बे अबी अंस व उम्मी फहल युदा अहदुम मिन तिलकल अबवाब कुल्लिहा। ऐ मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, एक बातें बताइए, सबको एक अलग अलग मुख्तलिफ दरवाजों से पुकारा जाएगा, नाम लिया जाएगा। कोई ऐसा भी आदमी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा, आओ इधर से आओ, यहां से आओ, यहां से आओ, कोई होगा? आपने फरमाया नाम नाम अर्जु अन तकूना मिनहुम, हाँ अबू बकर, और मुझे उम्मीद है कल क़यामत के रोज जन्नत के 8 दरवाजों से तुम्हारा नाम लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये हयात सिद्दीकी है मुसलमानों, ये सिद्दीक अकबर के सुनहरे कारनामे है। कौन सी नेकियां थी जो सिद्दीक के जिंदगी में नहीं थी? और मैं आपको बताऊं क्या कहा जाए मेरे भाइयों, एक आखिरी बात कह करके, कोई एक नेकी नहीं, सारी नेकियां। सुभान अल्लाह। जिसको शरीयत ने, इस्लामी शरीयत ने नेकी कहा है, सारी नेकियां अबू बकर की हयात में मौजूद थी। यही वजह है उनके अखलाक की बात की जाए ना, अखलाक मोहम्मदी नजर आता है सिद्दीक की शख्सियत में। सुभान अल्लाह। सिद्दीक को देखेंगे, हमारे नबी मोहम्मद को देखेंगे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद जैसा अखलाक अगर नजर आएगा वो अबू बकर की जिंदगी में आएगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते माई आयशा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी रसूल बनाए गए, हमारे घर में सुबह शाम आते थे। अल्लाह अकबर। ये घराना मुअज़्ज़ज़ घराना, पैगंबर सुबह शाम आ रहे हैं, इससे बड़े शर्फ की बात और क्या होगी? हमारे घर में पैगंबर सुबह भी आ रहे हैं, शाम में भी आ रहे हैं, दोपहर में भी आ रहे हैं। क्या मुअज़्ज़ज़ घराना रहा होगा? अल्लाह के नबी ने जिस घर को पसंद किया, चुन लिया, मुंतखब कर लिया। कहती है सुबह शाम आने लगे। जब मुसलमानों पर जुल्म और सितम शुरू हो गया, कार्रवाइयां शुरू हो गई मुसलमानों पर, एक एक करके मुसलमान मक्के से जाने लगे। अबू बकर भी बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए मक्के वालों से। कहा मैं भी छोड़ करके मक्का चले जाऊंगा, यहां रहना दुश्वार हो गया, इबादत है, बंदगी करना मुश्किल हो गया। चुनांचे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला मक्का छोड़ करके जाने लगे। रास्ते में एक शख्स मिला जिसका नाम इब्नु दुगन्ना आता है, वो शख्स मिला रास्ते में। अबू बकर कहाँ का इरादा है? एक एक बात सुनिए, बात में अपनी खत्म कर रहा हूं। कहाँ का इरादा है? सिद्दीक अकबर ने कहा मेरी कौम ने मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया है, अल्लाह की इबादत और बंदगी करने से रोक रहे हैं, ऐसे इलाके में मैं रह करके क्या करूंगा, चले जाऊंगा, यहां से जा रहा हूं मैं यहां से। उसने कहा, एक एक लफ्ज सुनिए, उसने कहा अल्लाह की कसम, फ़इन्न मिथलका या अबा बकर ला यखरुज वला युखरज। ऐ अबू बकर, आप जैसी शख्सियत मक्का छोड़ करके चले जाएंगे, ये मक्का बेनूर हो जाएगा, मक्का की अजमत खत्म हो जाएगी, मक्के का मकाम कम हो जाएगा, मक्के का रुतबा कम हो जाएगा। आप ऐसे वजनी शख्स हैं अबू बकर, आपके जाने से मक्का बेनूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फ़इन्न मिथलका या अबा बकर ला यखरुज वला युखरज। ऐ अबू बकर, आप इतने वजनी शख्स हैं, ना आप जा सकते हैं ना आप कोई निकाल सकता है। सुभान अल्लाह। ऐसे बनो मुसलमानों, बनोगे इंशाअल्लाह। हाँ, ऐसे बनो, ऐसे बनो। ये हयात सिद्दीकी का पैगाम है। कहा तुम्हारे जैसा वजनी आदमी मक्का छोड़ करके चले जाएगा तो मक्का बेनूर हो जाएगा, मक्के का नूर खत्म हो जाएगा।
آپ نہیں جا سکتے ہو۔ اس کے بعد ابن الدغنہ نے نا وہ خوبیاں گنائی جو خوبیاں میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ کے اندر تھی صلی اللہ۔ کہ ابو بکر، سنیے جلدی سے بات ختم کریں گے، کہ ابو بکر انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، وہی کارنامے، وہی خوبیاں مائی خدیجہ نے جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مزدوروں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ جیسا شخص اگر مکہ چھوڑ کر کے چلے جائے گا، اللہ کی قسم ہے مکے کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ابن الدغنہ نے ہاتھ پکڑا صدیق اکبر کا، مکے میں لایا، اور مکے میں لا کر کے مکے والوں سے کہا، اے مکے والے سنو، یہ ابو بکر میرا مہمان ہے، اس ابو بکر کو مکے سے کوئی نکال نہیں سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسی زندگی ہے جس کو پڑھ کر کے زندگیاں بنتی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ